ऑर्टिमिस हॉस्पिटल ने आज अपने आधुनिक हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट सेंटर का उद्घाटन किया। हैदराबाद के आईएमएस हॉस्पिटल में थोरेसिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स एंड मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के फाउंडर डायरेक्टर एवं चेयरपर्सन डॉक्टर संदीप अतवार इस सेंटर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस सेंटर के माध्यम से उत्तर भारत में थोरेसिक ट्रांसप्लांट और मैकेनिकल सपोर्ट की पूरी रेंज उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गुरुग्राम और आसपास के लोगों को दक्षिण भारत तक जाए बिना ही हाई क्वालिटी ट्रांसप्लांट केयर मिल पाएगी। A large group of pulmonologists, intensivists, cardiac surgeons, and it's highly experienced from some of the best universities already working for us. Now, not many people have got the opportunity to work dedicatedly in transplant. So, in terms of their skill sets, they're 90-95% already there. It's not that they have to learn from ground up in those 3 months that they went. So what they did was they just added. So they volunteered from the existing pool. We added some more doctors who were interested in the transplant program. So be it intensivists, pulmonologists, cardiac surgeons, whoever, and they volunteered. Then they were sent to KIMS Hyderabad, where they spent 2 to 3 months for some nurses and paramedics who were already working in these fields. Probably called brain death. The heart is functioning, all the other organs are okay. But in those days when there was no brain death rule, all donors were only from cardiac standstill. So you can imagine what an incredible challenge it is. And even for me, if someone asked me to do it right now, I will not be able to do it without the help of a machine. Now, if we do a similar operation from something we call a donation after cardiac death, we have to pick up the heart, put it on a machine, watch it for 4 hours, do multiple tests, measure some specific chemicals that are excreted by the heart, see heart function, take echocardiograms, do an angiogram on the heart on a bench, on a machine when it is pumping, it's called an OCS machine. And then when we are very confident that this heart will work well, only then are we allowed to transplant it. So for someone to do this for 10 years, and not just him, there were many other surgeons who did it and successfully had outcomes in those days, was a remarkable feat. Now that is one layer of complexity. If you look at the next layer was actually the lack of immune suppression. In those days there were only 2 drugs that were available. One was steroid, which we all know. Steroids are very common, we use it for almost everything. That was the only immune suppressant that was used. The other drug was a strange drug called azathioprine. Azathioprine is a drug which some of you might know. When you have rheumatoid arthritis or you have some autoimmune disease, they'll give you a drug called azathioprine. So these are the only 2 drugs. That drug was accidentally utilized for transplantation. They found that it had some benefit. But these are second, third line medications. These are not first line medications. So the first line medication did not exist. To do an operation in patients like this in uncontrolled circumstances and then achieve an outcome led to such bad outcomes or results that people gave up on heart transplantation. It was only after the discovery of a drug called cyclosporin, which basically came from a fungus, and it was synthesized by a chemist from France in a German company called Sandoz. When Sandoz invented this drug called cyclosporin, that is when transplantation actually really started. Because cyclosporin was the base drug, it was the primary drug for immune suppression, and thereby with cyclosporin, azathioprine and steroids, we were now being able to do kidney transplants successfully, liver transplants, hearts, and so that's the initial part. In the 80s and the late 80s, when all these drugs came into flow, the number of organ transplants, heart transplants exploded exponentially. Around the same time, we were fortunate because a brain death rule came. There's a state called Minnesota. They passed something called the brain death law. When that brain death law happened, even the Vatican, even all religious organizations accepted the fact that you can consider somebody brain dead when the brain does not give orders to the rest of the body. You can be considered clinically dead. And thereby that rule allowed us to now start harvesting organs from consenting families when their near and dear ones passed away. So why this was very important? Because incrementally as modern medicine keeps to continue to grow, we have seen that human life has reached a point where most of us will live in our 70s and 80s, sometimes even probably more. Simply because we now have chemotherapeutic agents, medicine, anti-cancer drugs, and so many other technologies that can extend lives.
So all these chronic conditions that we face like diabetes, hypertension, obviously are comorbidities which lead to end-stage organ disease and failure. We are able to now treat many of them primarily from the roots. We have insulin, we have so many other medications. We can control diabetes for years together. Earlier on, when we didn't have any of these, people would die of blindness, kidney failure, heart failure, and so on and so forth. So as medicine progresses, we will see older and older people requiring organ transplants. And thereby organ transplantation will also move in that direction. But we will never have enough organs from humans to be able to satisfy the needs and demands of organ transplants. And thereby now, organ transplantation is moving into the realm of 3D bioprinted organs. We're looking at picking up scaffolds from lungs and hearts, then seeding them with stem cells that are generated in a lab, which are specific, building a new heart and then transplanting. So these are now all on the horizon. We pick up heart from dead patients where the heart is stopped, put it on a machine, reactivate the heart, check it and then utilize it. In our program in KIMS, we have built an indigenous mechanism or a system where we pick up borderline lungs, we put them on a machine, we reinvigorate चाहिए वो लोग कंटिन्यूअसली साउथ ऑफ इंडिया में जाते हैं अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए। आज के दिन इतना एडवांस सुविधा नॉर्थ इंडिया में है नहीं, इंडिया में ही रुक जाएगी, क्योंकि एक हार्ट ट्रांसप्लांट करने के बाद नॉट ओनली द पेशेंट, उनके रिश्तेदारों को भी उनके साथ रहना पड़ता था साउथ इंडिया में, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 9 महीने तक। तो अभी क्या होगा कि पेशेंट यहाँ ही रुकेगा, घर के पास, रिश्तेदारों के पास। ऑर्गन जहाँ पर डोनेशन ज्यादा होता है, जो साउथ इंडिया में है, ऑर्गन ट्रैवल करके आएगा हमारे सेंटर पे और ट्रांसप्लांटेशन उनके घर के पास होगा। सो एक तो इमोशनली उनके लिए बहुत बढ़िया है कि घर के पास हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, उससे कॉस्ट कम होगा, क्योंकि रिश्तेदारों का किसी होटल में या किसी और जगह रहने का एक और प्रॉब्लम है। फिर लोकल खाना पीना ये सब भी नॉर्थ इंडियन लोगों को साउथ इंडिया में जाके रहने का मुश्किल होगा। हम उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं, हम इनको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हैं, जहाँ जो काम जिसके लिए आज वो नॉर्थ से साउथ जाते थे, अब आपके घर के पास वही काम हो सकता है। तो मैम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? जी, I'll just add to this. साउथ में भी जो ऑर्गन्स अवेलेबल हैं अभी के दौर पे, आप सोचिए जब रेसिपिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो जो लोग इस वेट लिस्ट पे वेट करते हैं उनको ऑर्गन के अभाव के कारण उनकी मौत होती है, वेट लिस्ट पे गुजर जाते हैं। तो आमतौर पे 30 से 35% जो लोग हैं जो ट्रांसप्लांट के वेट लिस्ट में होते हैं उन्हें ऑर्गन मिलता ही नहीं, क्योंकि डोनेशन इतने कम हैं। अब हार्ट और लंग की एक खासियत है कि ये दोनों अंग जो है शरीर के बाहर बिना सर्कुलेशन के 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे तक ही वायबल रहते हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्गन को कैसे प्रिजर्व करते हैं, आइस के बॉक्स में रखते हैं। आज के दौर में अगर दुनिया भर में देखा जाए यही तरीका है, लेकिन पिछले 10 सालों में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट्स हुए। अभी हम लोग ऑर्गन्स को 10 डिग्री में प्रिजर्व करते हैं, तो पहले निकालने के बाद 4 डिग्री आइस में रहते हैं, उसके 2 या 3 घंटे के बाद उनको 10 डिग्री के बॉक्स में डालते हैं, जो स्पेशलाइज्ड बॉक्स रहता है। उसमें ऑर्गन की क्वालिटी बरकरार रहती है, डैमेज नहीं होती, और उसको हम लोग 6 से 8 घंटे, इवन 12 घंटे तक हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम पहलू है इस फील्ड में। इसकी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। पहले की बात में अगर मान के चलिए चंडीगढ़ में अगर कोई डोनेशन हो रहा है, आमतौर पे फैमिली की इंडिया में तो ये खासियत है, तो बोले कि ये ऑस्पिशियस टाइम है, हमारा समय ये इस टाइम में क्रियाकर्म होना ज़रूरी है। अगर डोनेशन रात को हो रहा है तो आप सोचिए फ्लाइट्स भी अवेलेबल नहीं, तो कई सारे अंग जो नॉर्थ में डोनेट होते हैं वो कहीं इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे करने वाले तो कोई सेंटर नहीं है। वो ऑर्गन के लिवर और किडनीज वहीं पे इस्तेमाल हो जाते हैं, उसी अस्पताल में ट्रांसप्लांट हो जाता है किसी रेसिपिएंट का, लेकिन हार्ट्स और लंग्स वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अंग न चेन्नई जा सकते हैं, ना हैदराबाद जा सकते हैं, ना मुंबई जा सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप ये समझें कि नॉर्थ में भी डोनेशन काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन वो उनके इस्तेमाल नहीं किए जाने की वजह से ये ऑर्गन्स तो सारा वेस्ट है। चलो हम अपने आप को सुधारें। जिन वजहों से हमको लंग की डिजीज़ हुई, काफ़ी सारे लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम होता है, हार्ट और लंग इसीलिए डैमेज होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके हार्ट्स और लंग्स उनके इम्प्रॉपर हैबिट्स, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल की वजह से भी होते। तो अगर हमने वही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू किया तो फिर ऑब्वियसली उस नए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का भी यही असर होना है। तो
डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है और समय समय पे मेडिकेशन लेना अनिवार्य है। फैमिली को भी अंदाज़ा ये रहना चाहिए कि हम उसके साथ रह रहे हैं। जैसे एक बच्चे का विकास होता है, जैसे माँ बाप बच्चे का ख्याल रखते हैं, तो पहले कुछ महीने और कुछ सालों तक इस रेसिपिएंट का ख्याल रखना फैमिली की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, ये नहीं है कि ये रेसिपिएंट बिल्कुल 100% निर्भर है अपने सराउंडिंग्स पे। रेसिपिएंट को जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला अपनी बीमारी से और एक नॉर्मल लाइफ जीने का अगर उसको मौका नहीं मिला, तो तब तक तो वो काइंड ऑफ डिप्रेस्ड रहेगा। रिहेबिलिटेशन अगर उसका नहीं हुआ समय पे, उसको यही लगेगा कि मैं अभी भी बीमार हूँ। तो ये कोशिश नहीं है, ट्रांसप्लांट की ये कोशिश है कि लंग ट्रांसप्लांट के बाद इंसान घूमने फिरने लग जाए, आमतौर पे अपने एनवायरनमेंट से मिल सके, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रखें। जैसे खास करके कोविड के मौसम में या जब वायरल डिजीजेस रेस्पिरेटरी बीमारियाँ घूम रही है एनवायरनमेंट में, अपने आप को बैरियर थोड़ा सा कंट्रोल करें, मास्क पहने, हैंड हाइजीन रखें, ठेले से खाना नहीं खाएं, कम से कम घर में पका हुआ खाना खाएं। क्योंकि आप समझिए जो इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ हैं, उनकी अगर मात्रा शरीर में कम हुई तो रिजेक्शन हो जाएगा और ऑर्गन खराब होगा। तो अगर हमने बाहर कुछ खाना खा लिया, ठेले पे दस्त हो गया, दवाई निकल गई, क्वेश्चन इम्यूनिटी का ऐसा हाल है कि इम्यूनिटी ने डिटेक्ट कर लिया, ऑर्गन को नुकसान पहुँचाया, डेथ हो गई। इतना सब मेहनत किया, यहाँ से हैदराबाद चले गए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके वापस दिल्ली आ गए और ठेले में पानी पूरी खा के मौत हो गई। तो ये चीज़ें जो है ये डिसिप्लिन टीम सिखाती है, और जो लोग इस डिसिप्लिन को रख पाते हैं उनको सालों साल अच्छी ज़िंदगी बसर करने का। हम क्या कर रहे हैं कि हम नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांट सेंटर बना रहे हैं, ताकि लोगों को, नॉर्थ इंडिया के लोगों को नॉर्थ इंडिया में ही इसकी सुविधा मिले, नॉर्थ इंडिया के डोनेशंस नॉर्थ इंडिया में ही रहे। साउथ में ऑलरेडी डोनेशंस हो रहे हैं, अच्छा हार्ट लंग ट्रांसप्लांट का काम चल रहा है। दिस इज़ टू, ये हमें ट्रांसप्लांट्स के नंबर्स बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम से कम खर्चे पे फिर से एक नॉर्मल लाइफ जी कर सके। और इनको सुविधा हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह हम देना चाहते हैं मिल के। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके पास टीम है, हमारे पास प्री एंड पोस्ट ऑप टीम है। तो मिल के काम करेंगे तो जैसे बोलते हैं 1 और 1 11 होता है, तो वो ही इम्पैक्ट हम इन दिस स्पेस ऑफ हार्ट लंग ट्रांसप्लांट लाना चाहते हैं। जो आपकी हम आप लोगों को इनवाइट करेंगे स्मॉलर ग्रुप्स में वो फैसिलिटी देखें। एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, जहां हम आपको जो हमारी टीम दिख रही है ये फुल टाइम रहेंगे, और डॉक्टर अटावर की टीम जैसे जैसे ट्रांसप्लांट्स होंगे आते जाते रहेंगे। ये टीम हमारे इधर काम करते हैं और किम्स हैदराबाद में भी काम कर चुके हैं, तो इनको ये वर्क कल्चर क्या एक्सपेक्टेशन है सब समझ आता है। तो इससे क्या होगा, एक सीमलेस हमारे में कनेक्शन हो जाएगा बिटवीन आर्टेमिस एंड किम्स हैदराबाद। एक प्रश्न डॉक्टर टावर से है। कल आपने सुना होगा, देखिए नॉवेल्टी तो हर एक चीज़ में होती है, तो नॉवेल्टी में ये है कि लोगों ने अभी रोबोटिकली हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट ही किया है, लेकिन ज़रूरी ये चीज़ है जानना कि ये क्या ये यूनिक नॉवेल्टी चीज़ है या ये जनरल पॉपुलेशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जवाब मैं तो अभी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली रोबोटिक्स का बड़ा हाथ होगा इस ऑपरेशन को आसान बनाने में, इस ऑपरेशन को रिमोटली पॉसिबल करने में। जैसे कि मान के चलिए अगर मैं एक रोबोट में बैठा हूँ हैदराबाद में और रेसिपिएंट गुड़गांव में है और मैं आ नहीं पाया किसी वजह से, तो टेलीमेट्रिकली मैं ऑपरेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। कुछ हिस्से जो ऑपरेशन के मेरे कॉलीग डॉक्टर बिशुर पे वो एकम्प्लिश कर लेंगे, तो मेरे ना आने की वजह से किसी रेसिपिएंट को ऑर्गन ना मिले ये नहीं होगा। तो ये कॉस्ट कितना होगा? हाँ बताते हैं उसका तो भी ये चीज़ जो है ये साइंस अभी रोबोटिक्स हमको अलाउ करता है, लेकिन मशीन लर्निंग और एआई की जहाँ तक बात करेंगे, डॉक्टर श्वेता हैं, डॉक्टर बिश्वरूप है मेरे साथ, वो शायद इस पर ज़्यादा टिप्पणी कर सकते हैं, उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा है इसके बारे में। वो लोग अभी ये सब नॉवल चीज़ें सीखते हैं, हम लोग तो पुराने ज़माने के लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे ऑर्गन के सक्सेस की प्रिडिक्टेबली अच्छी हो सकती है। जैसे अभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि एक डोनर और एक रेसिपिएंट के बीच में मैच मिलाना ये थोड़ा सा मुश्किल है अभी, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं, टेस्ट बहुत लिमिटेड है। लेकिन एआई का जब ग्रोथ होगा और एआई में जो इन्फॉर्मेशन आएगा उससे हम मैचिंग बेटर कर सकते हैं, शायद आउटकम्स भी बेहतर होंगे। श्वेता, वुड यू लाइक टू से समथिंग? विशु, बिल्कुल, जैसे हमारी जो
जैसे हमारी जो सांस की बीमारियां हैं, जो पेशेंट एंड स्टेज जो लंग डिजीजेस पहुंच जाती है, उसमें ट्रांसप्लांट एक रे ऑफ होप की तरह है। और जैसे सर ने कहा कि रोबोटिक ब्रोंकोस्कोपीज़ आ गई हैं जो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्प करेंगी कि हम दूर से ही और बाहर से बैठे बैठे पेशेंट्स को, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ट्रांसप्लांट के पेशेंट के। एक बार सर्जरी हो गई उसके बाद पेशेंट को कैसे इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें ये चीज़ें हमारी बहुत AI है, ये बहुत काम आएगा ताकि हम दूर से बिना पेशेंट को टच किए अपने पूरे प्रोसीजर्स कर सके और इन्फेक्शन कंट्रोल में वो काफ़ी हिस्सा रहेगा उसका। AI ऑर्गन मैचिंग में AI का रोल हो सकता है, एज इन जैसे नॉर्मली हम लोग साइज मैच कराते हैं, यूरोपियन रेस्पिरेटरी सोसाइटी का एक इक्वेशन है उससे मैच कराते हैं। तो कंकरेंटली आज के डेट में वर्ल्ड में कोई 6 या 7 इक्वेशन है, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस, जिसको आप सारे को इंटीग्रेट करके उनका मीडियन निकालोगे तो उससे PTLC या प्रेडिक्टेड टोटल लंग कैपेसिटी बेहतर हो सकती है। आज से कोई 15 दिन पहले हम लोग रात को 1:30 बजे डिबेट कर रहे थे इस पर। सो आई क्विकली टुक सम टाइम ऑफ फ्रॉम दैट डिबेट, हाफ एन आवर थोड़ा सा प्रोग्राम किया AI को, एंड AI केम अप विद अ सोल्यूशन वेयर यू कैन पुट इन नंबर्स, और वो नंबर्स आपको एक आर्टिफिशियली जनरेटेड PTLC दे सकते हैं, विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द कन्वेंशनल PTLC या साइज मैचिंग नंबर दैट वी टेक। तो साइज मैचिंग लंग ट्रांसप्लांट में AI के द्वारा, या देयर आर अदर टूल्स ऑल्सो कि AI ड्रिवन सिलेक्शन, AI ड्रिवन वॉल्यूमेट्रिक असेसमेंट ऑफ लंग, AI ड्रिवन assessment of hearts, AI driven virtual angiographies, these can change। मतलब हार्ट लंग ट्रांसप्लांट में जो चीज़ हम लोग, सर ने कहा कि हम लोग OCS मशीन में डाल के रीएनिमेट करके हार्ट को फिर एंजियोग्राम निकालते हैं, so that can be completely AI driven, that is being done AI driven by certain centers in the West। एक कैम्ब्रिज में सेंटर है, द नफेल्ड स्कूल ऑफ सर्जिकल साइंसेस इन ऑक्सफोर्ड इज कोलैबोरेटिंग विद कैम्ब्रिज टू कम अप with a AI tool that does a virtual angiography, which is CT angiogram. So there are things that AI can do, there are things that we are using AI on a small scale। हम लोग AI से एक virtual डोनर रेसिपिएंट, एक वर्चुअल PRA मैचिंग पैनल बनाने का कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास वो नंबर्स है सर के पास, हमारे पास तो नहीं, सर के पास है। सो वी आर ट्राइंग टू यूज़ दैट डेटाबेस टू क्रिएट अ वर्चुअल PRA मैचिंग सॉफ्टवेयर, ताकि हर पेशेंट को साइट में पहुंच के डिसीजन ना लेना पड़े कि ऑर्गन एक्सेप्टेबल होएगा नहीं होएगा, हम लोग पहले ही वर्चुअल PRA कर सकें जो वेस्ट में होता है। तो AI इज़ ड्राइविंग अ लॉट ऑफ आवर ट्रांसप्लांट वर्क इनटू अ वेरी कोहेसिव फोर्स। एंड वन थिंग अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज दैट आप लोग सब लोग गूगल करते हो, तो वी हैव स्पोकन अबाउट द प्री-ऑप, इंट्रा-ऑप इन द पोस्ट-ऑप पार्ट। प्री-ऑप पोस्ट-ऑप तो हमारी जिम्मेदारी रहेगी, बट आई कैन एश्योर यू, बिकॉज आई हैव सीन, बारिंग अफ्रीका, आई डो नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट अफ्रीका, आई हैव काइंड ऑफ सीन द टॉप ट्रांसप्लांट सर्जन्स इन यूरोप, इन नॉर्थ अमेरिका, इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेविड मैकगिफिन, मार्सेलो साइपेल, वॉल्टर क्लेपेटको, कॉनराड होज्जेनेकर, and Sandeep Patawar. So intra-op is world class. Intra-op is second to nobody. Fantastic.